Hello students, so welcome back again to my class Pets of Wisdom. So in this session today we are going to make revision of reported speech. Reported speech, that is the part of sample paper number 4. We have already made revision of subject verb agreement or placement of correct use of verb in the statements in the earlier 3 sample papers. In this part we are going to study reported speech or make revision of reported speech. So sentence number 1, Ram said to Hari, I have passed the examination. Ram told Hari dash if he had passed the examination, that he had passed the examination, that I had passed the examination, or that he has passed the examination. So Ram told Hari. Said to is changed into told. Okay, then the first thing that we have to notice is what kind of a statement is there in reported speech. So I have passed the examination. Examination तो सिंपल ये जो स्टेटमेंट है हमारा अफर्मेटिव स्टेटमेंट है. ओके तो सबसे पहले हमने देखना होता है कि वो कौन सा सेंटेंस है, किस टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंपैरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. आफ्टर दैट द सेकेंड नंबर, नेक्स्ट वन, we have to notice the tense. I have passed the examination. Present perfect tense. Present perfect tense. Comma and inverted comma. Now, because the statement is in affirmative, obviously, comma and inverted comma will be changed into the conjunction that. Ram told Hari that I have passed the examination. Then we will have to, the next thing that we will have to be very much attentive of would be the person. प्रोनाउन जो है हमारे किस पर्सन में आए हैं स्टेटमेंट में वो हमें ध्यान देना होता है. सो I, that is the first person. That is the first person. And first person is always changed according to the subject of reporting verb. The subject of reporting verb. So reporting verb is a Ram that is made. So the pronoun of Ram will be, now here what we have to notice, that the person, in what case the person has come. In what case the person has come. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के पास में ही सब्जेक्ट है हमारा, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस. ओके तो ऑब्वियस सी बात है अब हमको राम का भी नॉमिनेटिव केस ही यूज करना होगा. ठीक है, तो राम ही, सो ही टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट इज चेंज इनटू past perfect. I have passed the examination, that he had passed the examination. Okay, so now you will search out your option. If he had passed the examination, no. That he had passed the examination, yes, this will be the correct answer. That he had passed the examination, which 2 times, so I had passed, sorry, this one is also not correct. That he has passed the examination, this one is also incorrect. Okay, so students, this is the best way to solve your reported speech questions. सबसे पहले आप खुद उसको सॉल्व करिए, उसके बाद आप ऑप्शन को देखिए. अगर आप सेंटेंस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी हमें एक सरसरी निगाह से देखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शंस में. अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है तो आपको क्लियर हो जाएगा. आप सिंपल क्वेश्चन सामने आएगा, उसको पहले खुद सॉल्व करिए और उसके बाद उसका जो भी ऑप्शन है उसको हमें सर्च करना है.
Okay. Karan said the flight leaves at midnight. The flight leaves at midnight. Karan said that the flight left at midnight. The flight leaves at midnight. The flight had left at midnight. The flight will leave at midnight. स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं. सेंटेंस जब आपको सामने दिख रहे हैं वीडियो को पॉज कीजिए. सबसे पहले आप खुद सॉल्व करके देखिए, उसके बाद अपने आंसर को चेक कीजिए. सो Karan said the flight leaves at midnight. So the statement is affirmative. Tense leaves present indefinite, or we can say simple present. But now the flight leaves at midnight. This is telling us, the statement is telling us the exact time of flight when it leaves. So यहाँ पर अब ये भी हमें ध्यान रखना होता है, इस स्टेटमेंट अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, स्टेटमेंट अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो चेंज नहीं होता है. स्टेटमेंट अगर हैबिचुअल सेंटेंस शो करता है, हैबिचुअल स्टेटमेंट शो करता है, कोई भी हैबिट को शो करता है, तो भी वो चेंज नहीं होता है. इसी तरीके से एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड टाइमिंग किसी की आने की जाने की, स्पेशली जो ऑफिशियल हमारे टाइमिंग्स होते हैं उनको भी हमें चेंज नहीं करना होता है, यानी उनका टाइम भी चेंज नहीं होता है. सो Karan said that the flight leaves at midnight. It will not be changed into means only that has been already converted. So the flight left at midnight. No, the flight leaves at midnight. This will be the correct answer. Remaining will be incorrect. And sentence number 3. Sir, I was not well, said the boy to his boss. The boy informed his boss respectfully that he had not been feeling well. Sir, he was not feeling well. I was not feeling well, sir, or he is not feeling well. Now, see, first of all, sir, I was not feeling well. The statement is assertive one. The statement is assertive. In assertive, it is a negative statement. Negative statement है, and it is in simple past. It is in simple past. So simply simple past is changed into past perfect, and it is absolutely simple past without were. Okay, so was or were. So normally was or were is changed into had been. Okay. सर और मैम, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, सर और मैम कभी भी आए शो हो आपको स्टेटमेंट में तो वो चेंज होता है रिस्पेक्टफुली. इट इज चेंज इनटू एन एडवर्ब रिस्पेक्टफुली. ओके, सो द बॉय इन्फॉर्म्ड हिज बॉस रिस्पेक्टफुली दैट he had not been feeling well. He had not been feeling well. So he had not been feeling well. Sir, he was not feeling well. Obviously this is incorrect. I was not, it is also incorrect. It is also incorrect. He is not feeling well. So he had not been feeling well. Okay. First form, first person था हमारा. ओके, तो फर्स्ट पर्सन ऑब्वियसली बाय सब्जेक्ट से चेंज होता है. सब्जेक्ट हमारा है बॉय, सो दैट इज व्हाई इट इज चेंज इनटू ही. ओके, देन द नेक्स्ट वन, ही सेड टू अस, आर यू गोइंग अवे टुडे? आर यू गोइंग अवे टुडे? interrogative statement. He asked us if we were
if were we going that day, that we were going away that day, if we were going away that day, if we were going away that day, सी है सॉरी टुडे है, if we were going away today, if we were going away that day. So set to is changed into asked. Okay, so set to इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में सेट टू चेंज होता है इधर आस्क्ड में या फिर चेंज होता है इंक्वायर्ड ऑफ में. देन we have to notice what kind of interrogative sentence it is. It is first type of interrogative. It is first type of interrogative. Okay, तो first type of interrogative जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. सो ये सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट हो रहा है. ओके, सो व्हाट इज द रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1? comma and inverted in place of set to we change it to means it is replaced with inquired of or asked, and then comma inverted commas conjunction में किसमें चेंज होते हैं मीन्स comma and inverted commas जो होते हैं वो कंजक्शन में चेंज होते हैं. वो कौन से कंजक्शन में चेंज होते हैं? वो चेंज होते हैं इधर इफ और वेदर, या तो इफ में चेंज होता है या वेदर में चेंज होता है. ठीक है ना. तो ही आस्क्ड अस इफ. नेक्स्ट वन इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा इसमें चेंज होता है अफर्मेटिव में चेंज हो जाता है, यानी सेंटेंस हमारा बिल्कुल सिंपल पॉजिटिव बन जाता है. ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले प्लेस होगा सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब. सो इफ you second person, then we will notice the person is second one you, and you is always changed according to the object of reporting verb, and object है हमारा us. ओके, फिर हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है उसका जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है. हम पर्सन को चेंज करना है या उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है. दैट इज नॉमिनेटिव केस, दैट इज नॉमिनेटिव केस. ठीक है ना. तो अब आज जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो हमें इसका भी क्या है नॉमिनेटिव केस लिखना होगा. तो अस का जो नॉमिनेटिव केस हुआ वो क्या हुआ? वी हुआ. ठीक है ना. सो इफ वी. ओके, अब यहाँ पर जब ये रिप्लेस जो आर है हमारा सब्जेक्ट के जब बाद आएगा तो हमें टेंस का भी ध्यान रखना है. ये हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑब्वियस ही बात है किसमें चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. ठीक है ना. तो इफ वी वर गोइंग, इफ वी वर गोइंग away, then today is adverb, तो adverb भी चेंज होता है. today is changed into that day. ओके स्टूडेंट्स, ये सारे रूल्स जो हैं ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं. ऑलरेडी 10 वीडियोस रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर बनाई हुई हैं विथ एक्सरसाइजेस. सो अगर आपको रिवीजन करना हो फिर से अच्छे से तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार एक वीडियो को चला करके एक्सरसाइजेस करके अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, और फिर जो रिवीजन की जो एक्सरसाइजेस बन रही हैं रिपोर्टेड स्पीच की उसके दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. सो इफ वी वर गोइंग अवे दैट डे, इफ वी वर गोइंग अवे दैट डे, दिस स्टेटमेंट इज राइट. ओके, रिमेनिंग स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. Next one, the teacher said to the students, have you completed your yesterday's assignments? The teacher dashed the students if they had completed their previous day assignments. तो ये बाकी का सेंटेंस कंप्लीट है. यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया है कि जो सेट टू है वो किस में कन्वर्ट होगा. सो ऑब्वियस सी बात है ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. ओके, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेट और सेट टू टोल्ड कुछ भी होता है तो किसमें चेंज होता है? आस्क्ड में चेंज होता है या फिर एनक्वायर्ड ऑफ में चेंज होता है. ठीक है,
बाकी सब के सब ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट वन, द कस्टमर आस्क्ड द बुक सेलर हाउ मेनी स्टोरीज डज दिस बुक कंटेन। द कस्टमर आस्क्ड द बुक सेलर how many stories did that book contain, how many stories that book contained, if how many stories that book contains, whether that book contained many stories. Now how many stories, this is again interrogative statement. This is again is interrogative statement, but in interrogative this is second type of interrogative. All these words are, all these statements are started with WH family words. ठीक है, यानी कि हमारे interrogative sentence जो होते हैं हमारे टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस होते हैं जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना, और सेकेंड होते हैं जो कि WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो अब क्या है, जो है वो अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें कि एक तो नॉर्मल जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक वो WH फैमिली वाले वर्ड्स जिनके साथ तुरंत हमारा क्या है कि नाउन का यूज होता है, ठीक है। तो उनमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे हाउ मच, ठीक है, हाउ मच वाटर जैसे हो गया तो उसमें भी नाउन हो गया। सेकेंड हाउ मच, सॉरी हाउ मेनी, ठीक है, तो हाउ मैनी में भी हमेशा नाउन का यूज होता है। इसी तरीके से व्हाट, लाइक अगर व्हाट के साथ व्हाट दोनों में ही यूज होता है, ठीक है, लेकिन व्हाट के साथ अगर तुरंत नाउन जैसे यूज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा विच एंड हुज, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ए और बी में। तो ये हमारे सारे ये जितने भी वर्ड्स हुए ये हमारे बी पार्ट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, यानी कि थर्ड टाइप भी हम कह सकते हैं इसको, बी पार्ट का जो इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, हाउ मेनी स्टोरीज। एक और बात, द कस्टमर आस्क्ड द बुक सेलर, कभी कभी आपको स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में पहले से ही सेट टू के बजाय आस्क्ड लिखा हुआ मिल सकता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेट टू को आस्क्ड में क्वेश्चन में ही दे देते हैं। हाउ मेनी स्टोरीज, सो द कस्टमर आस्क्ड द बुक सेलर हाउ मेनी स्टोरीज, हाउ मेनी स्टोरीज। इतना लिखने के बाद बाकी का जो रिमेनिंग सेंटेंस होता है वो बिल्कुल वैसे ही चेंज होता है जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरोगेटिव चेंज होता है। यानी सेंटेंस को हमें अब किस पे चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। सेंटेंस कौन से काइंड का है, ये हमारा डस है, यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टोरीज दिस बुक कंटेन्ड, हाउ मेनी स्टोरी दिस बुक कंटेन्ड, ओके, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट इसमें चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, ठीक है। फिर इंटरोगेटिव चेंज होगा अफर्मेटिव में, ठीक है। तो अफर्मेटिव में हमको ये ध्यान रखना होता है, सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होता है, जिसमें कि डू डस डिड यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो इस वजह से अब यहाँ पर डिड का यूज नहीं होगा, हम सीधे सीधे सिंपल पास्ट में बनाएंगे। तो सिंपल पास्ट में जब हम उसको चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, V1 जो है वो V2 में चेंज होना ही है, ठीक है ना। So how many stories this book contained? How many stories that book contained? Sorry, हाँ यहाँ पर एक this को भी हमने that में change करना है। How many stories did that book contain? How many stories that book contained?
इफ हाउ मैनी, इफ तो यूज होगा ही नहीं क्योंकि सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव है, तो इसमें सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव में जो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं वो अपने आप में कंजक्शन का काम करते हैं, इसी वजह से इफ तो वैसे भी नहीं आएगा, वेदर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो स्टेटमेंट है कौन सा सही होगा, सेकेंड वन यानी कि बी। हाउ मेनी स्टोरीज दैट बुक कंटेन्ड, how many stories that book contained, okay, this is changing to that, okay, so let's move to the next one. He said to me, what are you looking for? He inquired of me. now this is first type of interrogative, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बताया what word जो है वो दोनों टाइप के interrogative में आ जाता है। जैसे अगर आ जाए कि व्हाट बुक आर यू सर्चिंग फॉर, ठीक है, तो इस तरीके से विच बुक भी होता है, व्हाट बुक भी कभी कभी लिख देते हैं, तो व्हाट बुक से इस तरह से बन जाता है, वो हमारा सेकंड का बी पार्ट का इंटरोगेटिव होता है। यहाँ पर क्या है, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी व्हाट, सिंपली यूज सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, आई टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा, आई के साथ वॉज का यूज होता है। व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, व्हाट आई वॉज, ये क्या दो ऑप्शन सही कर दिए हैं। व्हाट यू वर लुकिंग फॉर, व्हाट आई वर लुकिंग फॉर, सो हम कह सकते हैं दोनों ही ऑप्शन गलती से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट कर दिए हैं। सो व्हाट आई was looking for, ठीक है, यहाँ पर ये हमें नहीं करना है, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने भी गलत किया है, what स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन 8, रितु said to me kindly help me, रितु requested me that I must help her, to help her, to kindly help her, if I could help her, kindly help me, so this is an imperative sentence, imperative sentence, imperative sentence set to is changed into request, order और advised, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड चेंज हुआ, यानी काइंडली किस में चेंज हो जाता है, काइंडली है हमारा सॉरी है, ठीक है, इस तरीके से प्लीज है तो ये सब हमारा किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में। सो रितु रिक्वेस्टेड मी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड विथ टू हेल्प मी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा, हर ऑब्जेक्टिव मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, तो ऋतु क्या है, गर्ल है, तो ऋतु का प्रोनाउन क्या होगा, शी होगा, और शी जब यहाँ पर रिप्लेस होगा तो हमें केस भी देखना होगा, केस है हमारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। सो ऋतु रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, टू हेल्प हर, टू हेल्प हर, the second option is correct. Next one, Akshita told me Rachna does not prepare good coffee. Akshita told me that Rachna dash, Rachna prepared good coffee, Rachna does not prepare good coffee, Rachna does not prepare good coffee, if Rachna prepares good coffee, Rachna did not prepare good coffee. So this is again simple statement, negative sentence, simple present, simple present negative statement, does not is changed into did not, remaining change sentence same to same रहेगा। So Akshita told me that Rachna did not prepare good coffee. Anjani said to me, then sentence number 10, Anjani said to me, did Tripti not share her notes with you? Anjani asked me. If Tripti has not shared her notes with me, if Tripti has not shared her notes, if Tripti had not shared her notes with her, if Tripti had not shared her notes with me. Did Tripti not? इंटैरोगेटिव स्टेटमेंट, अगेन इंटैरोगेटिव है, इंटैरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये हमारा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इंटैरोगेटिव किस में चेंज होता है, सिंपल नेगेटिव में चेंज होता है, ठीक है,
इंटरोगेटिव नेगेटिव किसमें चेंज होता है, सिंपल नेगेटिव में चेंज होता है। ओके, सो तृप्ति, देन टेंस डिड नॉट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैड V3 and object. So Anjali asked me if Tripti had not shared her notes with you. Object second person, again किससे चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। मी है, मी को जब हम यहाँ ले जाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस में ही है, फर्स्ट पर्सन है। सो अंजलि आस्क्ड मी इफ तृप्ति हैड नॉट शेयर्ड हर नोट्स विथ मी। इफ तृप्ति हैड नॉट शेयर्ड हर नोट्स विथ मी, if Tripti had not shared her notes with her, wrong, if Tripti had not shared her notes with me. So sentence number 10 is, sorry, sentence number 10 का जो ऑब्जेक्ट डी है वो करेक्ट है। So this is the end of session reported speech. Meet you soon with another part of any of the grammar part I will come. Okay, तो slowly धीरे धीरे gradually daily हम कुछ chapters जो है ग्रामर के वो रिपीट करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि जो डिटेल्ड में सेंटेंस जो चैप्टर्स हैं ग्रामर के मोस्टली कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ वॉइसेस रह गया है, बाकी टेंसेस वगैरह बाकी सब कुछ नॉर्मली ऑलमोस्ट ग्रामर पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, तो अगर ग्रामर का कोई भी पार्ट आपको स्टडी करना है तो आप प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और विथ एक्सरसाइजेस मैंने दिया हुआ है, ठीक है, समझाया हुआ है। ओके, सो मीट यू सून विद अनदर पार्ट of sample papers. Maybe I will come again with literature part. Okay.